Hello, good morning dear students. Myself Deepika Dhanwani. Today I am taking the class of 12th accountancy and I am heartily welcome to all dear students of 12th class. On behalf of Idle Institute of Commerce and Genius School of Commerce. As we are taking the regular classes by the online lectures, and if you remember that we discussed or continuing the taking the introduction part of the partnership form. The theoretical part we have completed from previous lectures, and now the today's I am taking the remaining question of question number 3rd. If you remember, we discussed 5 to 6 question in previous class, just previous class of question number 3rd, which is mentioned in page number 30 of your textbook. Please listen carefully, page number 30 of your textbook, question number 3rd, in which question number 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 10th we have covered in previous lecture. If you don't have textbook, I also sent the PDF of question number 3rd completely. So with the help of such PDF, you can easily read the question and the solution part we discussed in lecture. Now I took the question number 11, 6th and question number 7th of your textbook, question number 3rd part. Got it? And in the summary form, I also wrote here the questions also in summary form. Okay, if you want to understand in depth the question, you have the PDF also, and if you have the textbook, both, which is easy for you. The question number 11 is saying ABC. 3 partners are there, profit sharing ratio is 1:1:1. The total capital of firm is 4,50,000 and their capital proportion is 1:3:2. Firstly, we will have to segregate or calculate the capital of each partner, क्योंकि we have given the total capital of the firm. हमें पूरे फर्म की कैपिटल दे रखी है, हमें A, B और C की अलग अलग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी. ध्यान से पॉइंट आउट कीजिएगा, इट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इट इज द कैपिटल प्रोपोर्शन रेशियो. एंड राइट नाउ वी आर सेग्रेगेटिंग और डिविजनिंग द कैपिटल, नॉट प्रॉफिट. गॉट इट? So the capital of the firm is 4,50,000, in which the share of A is 1/6. How we can calculate the 6? The addition of all three ratio 1 plus 3 plus 2 is equals to 6. In 6th part, the A has the ratio of 1, the B has ratio in 6th part 3rd ratio, and C has in 6th part 2 ratio. Got it? So the calculation you are easily watching. The A's capital 75,000, B's capital 2,25,000 and C's capital 1,50,000. Then the calculation of interest on capital is given here. The interest rate is available in your question, 9% per annum. The A's interest IOC 75,000 is 9%, 66,750 rupees, 6,750 rupees. The IOC of B's 2,25,000 into 9%, 20,250 rupees, and IOC of C is 1,50,000 at 9%, 30,500. Now question is giving the information to you. The A is getting 73,500 rupees including interest on capital. A को टोटल फर्म से 73,500 मिल रहे हैं. तो आप देखिए, सॉरी C को, C की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 13,500. गॉट इट? 73,500 में से 13,500 तो उसका इंटरेस्ट है, तो वो फर्म से प्रॉफिट कितना ले रहा है? ऑब्वियस है 60,000. 73,500 में दो आइटम इंक्लूड हैं, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो सी को कैपिटल पे मिल रहा है. अगर 73,500 में से इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया जाता है तो 60,000 प्रॉफिट आ रहा है. एंड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ईच पार्टनर इज केयरिंग इक्वल प्रॉफिट. सारे पार्टनर्स को बराबर प्रॉफिट मिल रहा है. मींस इफ C or A is getting the profit 60,000 from the firm, means A is also getting the profit 60,000, B is also getting 60,000 profit, and C is also getting
getting 60,000 profit. So both has the profit 60,000. Now the A's IOC, A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6750, B's इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,250 rupees and C's interest on capital 13,500. So in profit, when we add up the IOC, the total amount is received. So I have mentioned A is getting 66,750 rupees from the firm, B is getting 80,250 rupees, C is getting 73,500 rupees. Got it? Mean the conclusion of that question, the question is asking the how much amount A and B are getting from the firm including IOC. A और B को फर्म से कितना पैसा मिल रहा है IOC को मिला करके, तो उन्होंने हमें C की डिटेल दे दी, C के हेल्प से हमने A और B को भी कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट सबका इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लिया। जब C को 73,500 टोटल पे हो रहा है बेटा, उसमें IOC 13,500 है, तो 60 वो फर्म से प्रॉफिट के उठा रहा है। A, B, C फर्म में इक्वल प्रोपोर्शनेट में है, मींस A को भी 60, B को भी 60 और C को भी 60 और उनकी IOC एडअप करेंगे तो टोटल उन्हें कितना अमाउंट फर्म से रिसीव्ड हो रहा है। गॉट इट? क्वेश्चन रीड कीजिएगा। It is also available in PDF format and if you have the textbook then you can easily watch on page number 30 the question number 3rd. Got it? Now the next question is 6th. The 6th question of your textbook is saying Sheila, Surbhi and Saket, okay, they are distributing 1,35,000 profit. Total firm को 1,35,000 rupees profit हुआ है, शीला, सुरभि और साकेत में डिस्ट्रीब्यूट करना है। राइट रेशियो है 3:2:3 और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है 2:1:3। मींस बेटा आपने शीला, सुरभि और साकेत को 1,35,000 डिवाइड कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, पर कौन से रेशियो में किए हैं 2:1:3, जो कि गलत है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करेंगे। 1,35,000 is distributed in 2:1:3. So Sheila is getting 45,000, Surbhi is getting 22,500 and 67,500 getting Saket. Distribution आता है सेम इसी तरीके से करना है। यहाँ पे 1,35,000 आ जाएगा, रेशियो की काउंटिंग लिखनी है 2, 1, 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर जिसका जो रेशियो हो वो रख दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन हम 10th में 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। गॉट इट? 1,35,000 को 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, शीला इज गेटिंग 45,000, सुरभि इज गेटिंग 22,500 एंड साकेत इज गेटिंग 67,500 विच वाज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने गलत दे दिया है उनको। अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या है। राइट रेशियो आपके लिए था 3:2:3। 1,35,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2:3 रेशियो में। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शीला, सुरभि एंड साकेत, डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही करना है जैसे यूजुअली पैटर्न रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। अब देखिए आपने व्हेन वी आर गिविंग द इंटरेस्ट और प्रॉफिट टू द पार्टनर, पार्टनर की पोजीशन क्रेडिट होगी, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा। गॉट इट? अब ये आपने उन्हें गलत दे दिया है, इनको कैंसिल करना है और सही अलॉटमेंट करना है। ओके, इफ यू हैव दो ऑप्शंस, या तो गलत वाला अमाउंट वापस ले लो और सही वाला अमाउंट दे दो, या फिर एडजस्टमेंट कर लो डेबिट और क्रेडिट का। कैसे? देखो बेटा, ये आपने इसको वापस लेना है, ये आपने उसको क्रेडिट कर दिया था, 45,000 दे दिए थे, जबकि आपको उसको राइट कितने देने हैं 50,625। तो क्यों ना हमें इसे और देना है, तो हम इसे 5,625 रुपीज और अलॉट कर देंगे। एंड इफ एनीबडी पार्टनर इज गेटिंग द अमाउंट, मींस द पोजीशन ऑफ सच पार्टनर और सच कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट, मींस शीला को 5,625 रुपीज और दिए जाएंगे। तो शीला की पोजीशन क्रेडिट पे होगी जर्नल एंट्री में। सुरभि 22,500 आप उसे दे चुके हैं, जबकि 33,750 रुपीज उसका राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो
डेफिनेटली शीला वी विल हैव टू आल्सो गिव द अमाउंट टू द सुरभि, हमें सुरभि को और अमाउंट पे करना है, तो 11,250 इन दोनों का डिफरेंस है, 11,250 रुपीज हमें उसे और देने हैं। डेफिनेटली जब हमें किसी पार्टनर को देना है मींस उसकी पोजीशन क्रेडिट में होगी, सो शीला और सुरभि's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नाउ रिगार्डिंग दिस साकेत वी अलॉटेड 67,500 टू साकेत, जो कि गलत थे, और जबकि साकेत को देने कितने थे हमें 50,625 रुपीज। तो साकेत से वापस से कलेक्ट कर लो, साकेत से 16,875 रुपीज हमें वापस लेने हैं। इफ वी आर टेकिंग फ्रॉम द पार्टनर, द पोजीशन ऑफ पार्टनर्स इज debit. So a journal entry is formed, Saket's capital account debit to Sheila's capital to Surbhi's capital. It is called the entry of rectification. ये गलती करके सुधारने वाले क्वेश्चन है, which is almost 2 or 3 questions content in your syllabus or in your chapter. 2 या 3 क्वेश्चन ही है सिर्फ। Now see the question number 7th of your textbook. Ram, Rahim and Ishu has the capital 60,000, 40,000, 50,000. ठीक है, ये उनकी कैपिटल की पोजीशन है। फर्म की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट है 6%, फर्म इज अलॉटिंग द 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि वो भूल चुका है देना, मतलब उसने उनको इंटरेस्ट अलॉट किया ही नहीं है, भूल गया है देना। इफ यू आर फॉरगेट टू गिव देम, नाउ इट इज टाइम टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। अब आपको अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा और उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्टली वी विल हैव टू कैलकुलेट हाउ मच इंटरेस्ट वी विल सैंक्शन, हम कितना इंटरेस्ट उनको सैंक्शन करेंगे, कितना हमें उन्हें देना है। तो कैलकुलेशन आपको पता है, कैपिटल 60,000, 6% इंटरेस्ट 3,600 तो राम को देना है, 40,000 कैपिटल का 6% 2,400 इंटरेस्ट हमको रहीम को देना है, और 50,000 का 6% 3,000 रुपीज हमको इशू को देना है। जब भी हम किसी पार्टनर को कुछ भी देंगे, द पोजीशन ऑफ पार्टनर्स इन कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट, गॉट इट। तो हमें उन्हें क्रेडिट करना है। अब फर्म ने टोटल 9,000 रुपीज का, अगर यहाँ पे टोटल लगाओगे तो 9,000 का इंटरेस्ट उनको पे कर दिया है। अब फर्म के लिए 9,000 रुपए खर्चा, एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो डेफिनेटली फर्म को 9,000 का लॉस भी होगा, तो वो लॉस अगेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 9,000 रुपए पार्टनर में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। Why we are taking the 1:1 ratio? Because in the absence of the profit sharing ratio, the distribution of profit or loss in equal proportionate. पार्टनरशिप फर्म में ये क्लियरली लिखा गया है रूल्स में कि अगर रेशियो अवेलेबल नहीं है तो ईच एंड एवरी पार्टनर को आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। सो 9,000 लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉस कैसे हो गया? क्योंकि फर्म का एक्सपेंसेस हो गया 9,000 का, तो 9,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में 3,000 3,000 3,000 पार्टनर को आईओसी देनी है, आईओसी क्रेडिट होगी उनके अकाउंट में, और उन पर लॉस चार्ज करना है तो उनके अकाउंट में डेबिट होगा। अब आप डिफरेंस देख लीजिए, 3,600 क्रेडिट है और 3,000 डेबिट है, तो 600 डिफरेंस हो गया। क्रेडिट डिफरेंस इसलिए होता है, इफ यू रिमेंबर यू लर्न इन 11th सेक्शन, जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होता है बैलेंस उसी का कैरी होता है। तो 3,600 क्रेडिट बैलेंस है, 2,400 and 3,000 now the debit balance is exceeding, तो 600 डेबिट बैलेंस है। इसको 3,000 और 3,000 मतलब इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, निल इफेक्ट है, एंट्री में शो ही नहीं होगा। सो the Rahim's capital account is debit with 600 and the Ram's capital account with credit is 600. So the question number 11, 6th and 7th contain